JEE results came recently now for 2024. And the funny thing is that you feel that things are going to change year by year, but things are only essentially getting more difficult and less easy for the majority of the population. What do I mean by this? Let's take a look at the results, right? Because here, if you take a look at the Indian Express, then afterwards, towards the bottom, they essentially give you the cutoffs. Cutoffs essentially mean like, what was the last score after which somebody was selected. So, or that was the last score after which somebody was not selected. This time for general category candidates, the cutoff for JEE Advanced is 93.23. So it's like even higher percentile, which is up from 90.77 in 2023 and 88.4 in 2022. So things have essentially gotten worse for the majority of the population if you compare it with somebody in 2021, 2022, 2023. This year, it's even more difficult, and this year, even more people are going to be studying in universities, studying in programs which they don't like, or which don't have a good infrastructure, or which is something that they're absolutely not happy about, right? Because you're writing for this exam, you're studying for this exam just so that you can get into a good university. Think about this, like it is such a ridiculous exam that like you have to be first of all in the million, like some good percentage in the million. My percentage I was checking previously was around like 4%. So I was having the rank of 43,000 something, so 4.3%. And the number of students who gave the exam in my time in 2016, not even 2016, 2012, was 1.2 million students. I did not have any chance whatsoever, and I was studying in a state government university. And what follows is generally shittier jobs, not so nice teachers, not such great infrastructure, not many opportunities. All of these are a result of one single exam. Just think about this, like how insane this is, right? So I know many people who are struggling with this, who got these scores, and they're just absolutely not happy because things have gotten worse year over year. The most number of students are still not able to study in any of the IITs or good universities, and then they have to go towards private universities and study in the programs which they don't want to study in. This is not a win-win for anybody. इस चीज़ का कोई सेंस थोड़ी ना बना कि भाई 2 साल तक मेहनत करी किसी एग्ज़ाम के पीछे और उसके बाद वही प्रोग्राम नहीं पढ़ पा रहे जहाँ पे जो है पढ़ने का मन था. मेरे को तो कोई सेंस दिखता नहीं इस चीज़ का. ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक रिजल्ट इन समथिंग हॉरिबल. बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट लाइक ऑल ऑफ द notes and things like that which happens every single year, like this is an article from 2024 itself, and here it states like in 2023 at least 29 students died in Rajasthan's quota. This was the highest number of students recorded in the city since 2015. I mean, this is absolute insanity. Now just think about the pressure that somebody actually goes through if they are feeling this lonely, if they're feeling this kind of like academic pressure and they feel like they're alone and they cannot speak to anybody. This is a way to kind of make sure कि भाई जो ये किताबें दी गई हैं, जो कुछ भी सिलेबस दिया गया है, उसको बढ़िया तरीके से रटो, उसको उसके पैटर्न्स को समझो और उसी में जो है एक तरीके से एक्सेल करो. कुछ भी बाकी बाहर की क्रिएटिव थिंकिंग उसकी कोई एक तरीके से जगह है ही नहीं सारे के सारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इस टाइम पे. चाहे तुम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लो, चाहे तुम यूनिवर्सिटी से पहले की बात कर लो, जो तुम्हारी कोचिंग वाला सारा काम चल रहा है, ठीक है. तो आई जस्ट सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक गोइंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, एंड दिस डायरेक्शन इज horrible for the parents, it's horrible for the students, and this is like not a nice place to be inside at all. और इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था कि देखो, अगर तुम बढ़िया रिजल्ट आ गया तो यार बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस. पर अगर तुम्हारा बुरा रिजल्ट आ गया तो ये थोड़ी होगा कि भाई ठीक है अब ज़िंदगी ख़त्म और जो है और किसी चीज़ का सेंस नहीं बचता. चीज़ें आईआईटी वगैरह में इसमें जनरली डिफ़िकल्ट हैं. इंडिया में जनता इतनी ज़्यादा है कि अगर तुम बहुत बढ़िया भी स्टूडेंट होगे ना, तो चाहे तुम्हें किसी तरीके का रिकग्निशन मिल जाए, जर्मनी में, फ्रांस में, कहीं भी तुम्हें जो है बढ़िया रिकग्निशन मिल जाए, पर इंडिया में जब जनता इतनी ज़्यादा है तो तुम्हें काय का रिकग्निशन मिलेगा यार. तुम्हारे जैसे मतलब 10, 15, 100, 1000 और अलग लोग होंगे, तो इसलिए जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. देखो, मेरे को ये लगता है कि हर एक देश को ना अलग अलग लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है. मेरे को समझ आता है कि यार अगर मेरे को अपने देश में जो है रिकग्निशन नहीं मिलता, अगर मैं अपने देश में कुछ बढ़िया काम नहीं कर सकता, मेरे देश में मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट और लोग हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे देश में जाऊँगा जहाँ पे मैं खुश रहूँ और मेरे काम की कोई रिकग्निशन हो, जहाँ पे लोग मेरे काम से खुश हो, ठीक है. और अब जर्मनी वगैरह में, बाकी सारे यूरोपियन देशों में लोग खुश हैं कि अगर भाई कोई वहाँ पे आ रहा है. मेरी तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि बजाय इस डायरेक्शन में जाने के कि भाई ठीक है अब जो है कोई सेंस नहीं बनता, अब कुछ करने का सेंस नहीं है, अब मैं ड्रॉप लूँगा, फिर से पढ़ाई करूँगा,
अगर तुम्हारा मन है कि भाई मेरे को इस देश में रहना ही नहीं है, मेरे को इस एजुकेशन सिस्टम में एक तरीके से मेरे को एक गेम ही प्ले नहीं करना, तो सबसे बढ़िया और सबसे इजी तरीका है कि तुम बाहर जाके पढ़ाई करो। और ऐसा नहीं कि भाई बाहर जाके पढ़ाई करने में तुम माड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ोगे, तुम उससे भी ज़्यादा बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ोगे जो तुम इंडिया में पढ़ने लगते थे। मेरे को तो ये लगता है टाइम जब लिमिटेड है तो भाई दो काम करने चाहिए। अपना जो है किसी बढ़िया कंट्री में चले जाओ और जो है वहाँ पे बहुत खुशी के साथ, अपना बहुत मस्ती के साथ अपने यूथ के ईयर्स निकालो और कुछ बढ़िया करो ज़िंदगी में। क्योंकि अब इस एक एग्ज़ाम के पीछे सोचना कि ठीक है अब मैं ज़िंदगी में और कुछ कर ही नहीं सकता, उस चीज़ का तो मेरे को सेंस दिखता ही नहीं है। अब मेरा सोच के देख लो, मेरा जो सारा का सारा बैकग्राउंड था वो थोड़ी ना था इसका IIT JEE वाला, नहीं, वो तो मैं क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद भी मतलब यूँ सोच के देखो, स्टार्टिंग में जो है मेरा दोस्त भी मतलब बढ़िया जगह लग गया, पर वो भी बहुत मेहनत मारने के बाद। ठीक है, हम अपना हॉस्टल में रह रहे थे इसमें, ठीक है, डिक्रस में। और उसके बाद जो है मतलब साल के बाद साल जो है चीज़ें जो है एक तरीके से बढ़िया होती गई। पर कहाँ बढ़िया हुई? बढ़िया बाहर हुई, बढ़िया इंडिया में नहीं हुई। क्योंकि बाहर लोग कम है, लोग कम है, तो अगर तुम्हारे पास एवरेज या फिर अबव एवरेज भी इंटेलिजेंस होगी तो एक तरीके से तुम ऐसी जगहों पे जा पाओगे जहाँ पे मतलब लोग ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो तुम कुछ ना कुछ एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पाओगे। इंडिया में तो ऐसा है कि यार ठीक है, तुझे जो है काम नहीं करना तो कोई और आ जाएगा, बाहर में जाओ। तो उस हिसाब से मतलब लाइफ इम्प्रूव होती गई। ठीक है, यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, यूनिवर्सिटी के बाद जो है घर लिया, एक बोट ली, फिर बढ़िया सी जो है मेरी फेवरेट गाड़ी थी वो ली, उसके बाद फिर अपना खुद का घर लिया। तो उस हिसाब से चीज़ें मतलब जो है यूँ सोच के देखो डेवलप हो सकती हैं। यहाँ पे तुम्हें लगता है कि कोई मेरे को बोलता होगा कि भाई ठीक है तेरी लाइफ ऐसे जाएगी और जो है मैं यकीन कर लेता? बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। पर मेरे को तो ये पता था कि यार अगर मुझे लाइफ में कुछ बढ़िया सा करना है तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, इंडिया से बाहर निकलना ही पड़ेगा, और निकलने के बाद जो है सारी की सारी चीज़ें बहुत बढ़िया होगी। तो इस चीज़ का मतलब तुम थोड़ा सोच के देखना कि यार ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक ही देश में रह के सारे काम करने, तुम बाहर भी जा सकते हो। और तुम अभी 12वीं में हो, ठीक है, 12वीं के बाद जर्मनी में दो ऑप्शन रहते हैं, या तो मतलब अपना तुम स्टूडेंट को लेकर लो, या फिर जो है तुम अपना एक साल बैचलर्स का कर लो इंडिया में, या फिर एक और ऑप्शन रहता है कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वो स्टूडेंट को ले मांगते ही नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्टली एडमिशन देते हैं 12वीं के बाद, पर उसमें एक परफॉर्मेंस टेस्ट देना पड़ता है। तो ये सारे के सारे मतलब तुम्हारे पास ऑप्शंस रहते हैं हमेशा। ठीक है, पर अगर तुम इस सब में इंटरेस्टेड हो तो तुम इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो जो इस वीडियो के नीचे मिलेगा, और उसमें तुम जितना डिटेल में चीज़ें भर सकते हो उतना भरना। क्योंकि अगर छोटे रिस्पॉन्सेज होंगे तो मैं उसको डायरेक्टली इग्नोर कर दूंगा, मेरे को दिखेगा ठीक है भाई ये स्टूडेंट सीरियस ही नहीं था। पर अगर तुम्हारा बाहर पढ़ने का मन है बैचलर्स का, तो इस फॉर्म को फिल आउट करो, और जो है मैं फिर तुमसे कांटेक्ट करता हूँ आगे। पर डिटेल में अपनी स्टोरी बताना, क्या कुछ है क्या कुछ चल रहा है, ताकि मेरे को समझ आए कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्या कुछ इंटरेस्ट है तुम्हारे, तो उस हिसाब से मैं तुम्हें अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊँगा। ये थी एक छोटी सी वीडियो, क्योंकि मेरा भाई इसके बारे में बात करने का बहुत मन करता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब मेरे को तो कोई सेंस दिखती नहीं है सबका। बाहर के लोग इस उम्र में जो है पार्टी कर रहे होते हैं, घूमने जा रहे होते हैं, अलग अलग देश देख रहे होते हैं, और हमारे लोग इस उम्र में मतलब अपनी एसएससी करा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। उसका कोई सेंस थोड़ी बना, बिल्कुल भी नहीं बना। तो थोड़ा सोचना इसके बारे में, अपने आसपास वाले दोस्तों से बात करना, और तुम्हें बैचलर्स वगैरह पढ़नी है जर्मनी में तो मेरे को बताना, फॉर्म नीचे फिल कर देना, मैं फिर तुमसे कांटेक्ट करता हूँ।